دنیا میں بہت کم ہی ایسے فنکار پیدا ہوئے ہیں جن کی عظمت کا اعتراف خود ان کی زندگی میں بخوبی طور پر کیا گیا ہو۔ ان چند خوش قسمت فنکاروں میں جن کی تخلیقیت اور فنی صلاحیت کا لوہا ساری دنیا نے مانا، ان میں ایک نام نند لال بوس کا بھی ہے۔ Nandalal was more down to earth. He had greater interest in public art. He responded to environment, and he wanted to take art from being a kind of aspect of self-expression to a kind of art that served society. آپ کو جدید فن مصوری کا استاد مانا جاتا ہے، اور جن عالمگیر شہرت یافتہ شخصیات کے ساتھ رہ کر آپ کو کام کرنے کا موقع ملا، ویسا موقع بہت کم ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ نوبل انعام یافتہ ادیب ربیندر ناتھ ٹیگور کے بے حد قریبی مانے جاتے تھے، اور آپ نے ان کی بہت سی تخلیقات کو سامنے رکھ کر خوبصورت پینٹنگز بنائی تھیں، جن میں کریسنٹ مون، گیتانجلی اہم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے زمانے کے بے حد مشہور و معروف مصور جنہیں استاد الاساتذہ کا درجہ حاصل ہے، یعنی ابنیندر ناتھ ٹیگور کے ساتھ رہ کر فن کی باریکیوں کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ He did this, and also as an artist he realized that whereas his teacher Abanindranath thought that art is a form of self-discovery, Nandalal thought that in this self-discovery you have to also be assisted, that as a colonial nation we had lost the traditions of art language and forgotten them. So there was a need for bringing back a kind of linguistic framework for the practices of individuals. The teaching program in Kalaban, because of Nandalal, took on a very important role in the building up of the visual art scene in India during the early part of the 20th century. ربیندر ناتھ ان کی تخلیقی صلاحیتوں سے اس قدر متاثر تھے کہ انہیں 5 سالوں تک بطور خاص اپنی شاگردگی میں رکھا اور فن کی باریکیاں سکھائیں جو ان کے زندگی بھر کام آئیں۔ بوس کا ایک بہت ہی اہم ستھان ہے، ایک بہت ہی اہم جگہ ہے، کیونکہ ان کا کنٹریبیوشن جو ایجوکیشنل سفیر میں بھی اتنا امپورٹنٹ ہے۔ بہت لمبے عرصے تک وہ شانتی نکیتن کے کلا بھون سے جڑے رہے، اور انہوں نے ان گنت اس سمے کے امپورٹنٹ آرٹسٹ کو ٹرین کیا۔ بات سکل کی نہیں تھی، بات سینس کی تھی، ہے نا، بات سینسیبلٹی کی تھی، بات یہ تھی کہ کیا دیکھنا ہے، کیا سنجونا ہے اور کیا پینٹ کرنا ہے۔ لیکن مصوری کی دنیا کے اس درخشاں ستارے کی زندگی کم پریشانیوں جد و جہد بھری نہیں رہی، کیونکہ آپ نے جس انداز سے اپنی زندگی کا آغاز کیا وہ بہتوں کے لیے پریشانی اور مصیبت کا سبب بن سکتا ہے۔ مگر ان کی عظمت اس بات میں چھپی تھی کہ وہ کبھی کسی پریشانی سے گھبرا کر قدم پیچھے نہیں ہٹاتے تھے، اور جب تک اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر لیتے تھے چین سے نہ بیٹھتے تھے۔ ان کی پیدائش بے حد ہی زرخیز صوبہ کھڑگپور میں 3 دسمبر 1883 کو ہوئی تھی۔ ان کے والد پورن چندر بوس راجہ دربھنگا کے ملازم تھے اور کھڑگپور تحصیل میں مینیجر کے عہدے پر فائز تھے۔ ان کی والدہ چھیترامنی دیوی کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر محض 8 سال کی تھی۔ اس ننھی سی عمر میں ماں سے بچھڑنے کا غم ان کے لیے دنیا کے سارے غموں سے بڑا تھا۔
मगर वालिद की मोहब्बत और शफकत की वजह से बहुत जल्द ही वो इस सदमे से बाहर आ गए। लेकिन उनके अंदर यकायक एक शऊर भी पैदा हुआ और उनका नन्हा ज़हन तख्लीकियत की तरफ खुद ब खुद माइल होने लगा। उन्हें बहुत जल्द ही ये एहसास हो गया कि उनकी तख्लीकी क़ुव्वत रंगों के ज़रिए से बाहर आ सकती है और वो कुदरत के हसीन मनाजिर को रंगों और ब्रश की मदद से कैनवस पर उतारने लगे। Nandalal Bose, another one thing is very important, that Nandalal Bose, especially, he has given stress on the color, which is pigment color. Means Nandalal Bose, like Abanindranath Tagore, his most of the painting, Abanindranath Tagore painted with a transparent watercolor, though he has used his own technique which is called wash. But Nandalal Bose is another reason for his significance of work, that he has used only this most of the works, almost 75 to 80% works he has done with the pigment color. हालांकि उस ज़माने में मुसव्विरी को आम जिंदगी में रोजी रोटी के साथ जोड़कर नहीं देखा जाता था। इसीलिए वालिद साहब को इस बात की फिक्र लाहिक हुई कि अगर उसने तस्वीरें बनाना ही जारी रखा तो जिंदगी के दूसरे मसाइल कैसे हल होंगे। लिहाजा उन्हें इस बात के लिए आमादा किया कि वो रिवायती तालीम की तरफ तवज्जो दें और खुद को अच्छी डिग्री और तालीम से आरास्ता करें ताकि कोई अच्छी नौकरी मिल सके और जिंदगी की गाड़ी को फिर आसानी से खींचा जा सके। मगर उनका सहन स्कूल और कॉलेज की जिंदगी से घबराता था और जी करता था कि हमेशा ब्रश और रंगों के साथ ही वो अपना वक्त गुजारते रहें। मगर वालिद साहब के इसरार के बाद बिल आखिर उन्हें तालीम की तरफ तवज्जो देनी ही पड़ी और आला तालीम के हुसूल की खातिर कलकत्ता आ गए, क्योंकि उन दिनों उस शहर को पूरे हिंदुस्तान में बड़ा इल्मी, अदबी और तख्लीकी मरकज़ तसव्वुर किया जाता था। कलकत्ता में उन्होंने सेंट्रल स्कूल में दाखिला ले लिया और अपनी पढ़ाई का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल थी। इस उम्र में दयारे गैर में अपने वालिद और दूसरे रिश्तेदारों से दूर रहकर तालीम हासिल करना कोई आसान काम नहीं था, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वहां से उन्होंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। फिर उसके बाद जनरल असेंबली कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन उनका मन दरसी किताबों में बिल्कुल न लगता था और अपना ज्यादातर वक्त मुसव्वरी पर लिखी गई किताबों और रिसालों को जमा करने और उसके मुताले में खर्च होता था। इसका नतीजा ये सामने आया कि FA के इम्तिहान में वो फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने दोबारा फिर अपनी अधूरी तालीम को मुकम्मल करने की कोशिश की और मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में दाखिला ले लिया और एक बार फिर इस कोशिश में मसरूफ हो गए कि तालीम के साथ साथ उनकी मुसव्वरी जारी रहे। मगर यहाँ भी वही हुआ जिसका डर था। दरसी तालीम में पूरी तरह से दिल नहीं लगा पाए और एक बार फिर नाकामी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इम्तिहानात में नाकामयाबियों के बावजूद उनके अंदर एक अच्छा मुसव्विर बनने का जज्बा कभी कम नहीं हुआ और रंग और ब्रश के साथ अपनी तख्लीकी सलाहियत को उभारने की कोशिशों में हमातन मसरूफ रहे। So Nandalal Bose, he was a very significant artist in that sense. And after Nandalal, there are so many artists who tried to follow Nandalal Bose, but they were not the masters. I mean to say, they had not that amount of skill to portray like Nandalal Bose, and easily we can identify those paintings, and easily we can identify what's the difference between Nandalal Bose and the other artists who
painted later on. यहाँ एक तरह से उनकी मुसव्वरी के मैदान में आगाज बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोफेशनल की तरह हुआ। इसी दौरान उनका सामना यूरोपी और दूसरे एशियाई फनकारों से हुआ और उनके अजीम फन पारों का गहराई से मुताला करने के बाद उसे रंगों पर उतारने की जद्दोजहद में मसरूफ हो गए। In Nandalal Bose, we will see exclusively the Ajanta drawing, Rajput miniature drawing, and the drawing he has taken from the sculpture. And Nandalal Bose, his followers, they all together they started the painting following this ideology. यूरोपी मुसव्विर राफेल और मैडोना की तस्वीरों से उन्हें बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला। इसी जमाने में वो एक अजीम हिंदुस्तानी मुसव्विर राजा रवि वर्मा की तख्लीकात के करीब आए और उनकी तस्वीरों ने उन्हें इस कदर मुतासिर किया कि वो उन्हीं के रंग में रंगते नजर आए। उन्होंने राजा रवि वर्मा की तस्वीरों से मुतासिर होकर जो पेंटिंग्स बनाई उनमें महाश्वेता सबसे अहम है। महज 20 साल की उम्र में ही उन्हें शादी के बंधन में बंधना पड़ा। उनकी शादी सुधीरा देवी से कर दी गई। उनके ससुर प्रकाश चंद्र पाल के कहने पर उन्होंने एक बार फिर रिवायती तालीम का रुख किया और प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया ताकि तालीम पूरी करके अपने करियर को संवार सके। मगर उनका हमेशा की तरह यहाँ भी दरसी किताबों में मन नहीं लगा और तालीम को छोड़कर फिर एक बार पूरी तरह मुसव्विरी की दुनिया में गर्क हो गए। इस दौरान उन्होंने चंद ऐसी खूबसूरत तस्वीरें बनाई जो बड़े बड़े माहिरीन फन की तवज्जे अपनी तरफ मबसूल कराने के लिए काफी थीं। जैसे उनकी एक तस्वीर दमयंती पर तबसरा करते हुए उनके उस्ताद अभिनेंद्र नाथ टैगोर ने कहा था कि इस तस्वीर में जिस मंडप की तस्वीर बनाई गई है वो देखने में ऐसी मालूम होती है कि इससे खुशबू निकल रही हो। इसी तरह उस जमाने के मशहूर व मारूफ जापानी मुसव्विर ओकाकोरा ने भी उनकी तस्वीरों की खूब तारीफ की और उनकी फन्नी सलाहियत का एतराफ खुले दिल से किया। उसी दौरान अभिनेंद्र नाथ टैगोर ने उनकी तवज्जो को यूरोपीय फन मुसव्वरी के साथ साथ मुल्क की रिवायती फन मुसव्वरी की तरफ भी मबसूल कराया और उसकी बारीकियों से भी वाकिफ कराया और उन्हें इस बात के लिए आमादा किया कि वो जदीद तर्ज इख्तियार करते हुए पुराने तर्ज की भी तस्वीरें बनाएं, जैसे हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें, मजहबी किताबों जैसे महाभारत और रामायण पर मबनी कहानियों की तस्वीरें। In the later age, Nandalal shifted with a different ideology, with a different idea, what he has painted. In early age, he painted mostly the deities and others. But slowly, he shifted and he was advised by the Rabindranath Tagore, why don't you giving your attention that surrounds you, the daily living of the human being. अभिनेंद्र नाथ टैगोर ने उनकी माली परेशानियों को दूर करने के लिए सरकारी वजीफे का भी इंतजाम करा दिया, जिसमें उनको 12 रुपए माहवार मिला करते थे। उन्होंने जंगे आज़ादी से मुतासिर होकर चंद यादगार तस्वीरें बनाई। उनमें चंद तस्वीरों को तो उन्होंने सिर्फ 25 पैसे फी तस्वीर इसलिए फरोख्त कर दिया ताकि आम गरीब लोग भी उनकी तस्वीरों को खरीद सकें और अपने घर की दीवारों की जीनत बना सकें। लेकिन उनकी दरियादिली अभिनेंद्र नाथ को पसंद नहीं आई और उन्होंने उन सारी तस्वीरों को दोबारा खरीद लिया ताकि उनकी हिफाजत की जा सके और इम्तदाद ज़माने की गर्द से बचाया जा सके।
उन दिनों इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की बुनियाद रखी गई, तो उनकी तस्वीरों की न सिर्फ वहां नुमाइश की गई बल्कि उन्हें 500 रुपए का इनाम भी दिया गया, जो यकीनन उनका हौसला बढ़ाने वाला एक बेहतरीन कदम था। And Nandalal Bose painted most of his works is with the pigment color, and the medium is the paper, is the board, and clothes. All he has used for his painting, and he has used with a very big format, not only in a small format, he has used a big format of painting. Some of his painting is really very large painting. उसी दौरान अभिनेंद्रनाथ ने उन्हें अपने कॉलेज में, जहां के वो उस्ताद थे और इंतजामी उमूर की जिम्मेदारियां भी संभालते थे, उन्हें नौकरी की पेशकश की, जिसे उन्होंने बड़े मौद्दबाना तरीके से ये कहते हुए ठुकरा दिया कि वो सरकारी नौकरी की कैदोबंद में बंधना नहीं चाहते, बल्कि आज़ाद रहकर अपने फन पर काम करना चाहते हैं। लेकिन अभिनेंद्रनाथ ने उन्हें इस बात के लिए आमादा कर लिया कि कम से कम वो उनके यहाँ रहकर उन तस्वीरों की कैटलॉगिंग में मदद कर दें जिसे वो उन दिनों मुरत्तब कर रहे थे और अपने म्यूजियम का हिस्सा बनाना चाहते थे। Nandalal Bose was perhaps the most talented student of Abanindranath. But he probably realized very early in his life that his sensibilities were not that of his teacher. While Abanindranath was an intimist who was more concerned with his sensibilities, a man of high intellectual interest, of refined literary taste, and who brought all these various elements together into a very personalized form of expression. रविंद्रनाथ टैगोर से भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुक थे और अपने तालीमी इदारे शांति निकेतन में वाक़े कला भवन की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी, जिसे उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से कबूल कर लिया। Rabindranath was also looking for somebody who would do these things. So he not only chose Nandalal to visit Shantiniketan occasionally, who also took Nandalal with him on his visits to the rural areas of East Bengal. And finally in 1919, when he decided to start an art school in Shantiniketan, he invited Nandalal to come and take charge of this institution. And Rabindranath's ideas at that point guided Nandalal's future evolution as an artist. उन्होंने इनकी कई मशहूर तसानीफ को सामने रखकर कुछ यादगार तस्वीरें भी बनाईं। Now this is where Rabindranath Tagore had a role to play, because Tagore believed that Shantiniketan would develop as a place, as a cultural location, if only we take some initiative to build up a culture rather than just simply depending on the available natural environment. साथ ही उन्होंने अपने ड्रामे स्टेज शो के दौरान उनसे अहम खिदमात हासिल की, खासकर सेट डिजाइन करने के लिए। उनकी तस्वीरों की कामयाब नुमाइशें न सिर्फ अंदरूने मुल्क मुनक्किद की गईं बल्कि बैरूने ममालिक में भी ले जाई गईं और लोगों ने खूब पसंद किया, जैसे चीन, जापान, बर्मा वगैरह में। 1934 में उन्होंने सीलोन यानी श्रीलंका का भी सफर किया। उस जमाने के मुजाहिदीन आज़ादी जैसे गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू से उनके बेहद खुशगवार और करीबी ताल्लुकात थे। उनकी बनाई गई यादगार तस्वीरें आज भी गांधी जी के आश्रम की दीवारों पर आवेज़ा हैं और उन दिनों की याद दिला रही हैं। तो वो बहुत प्रोलिफिक थे,
फिर he was also associated with the national movement of India. गांधी जी ने उनको बुलाया और हरिपुरा कांग्रेस जो अर्ली 20th सेंचुरी में हुई थी उसके सारे पोस्टर्स उन्होंने बनाए थे. तो नॉट ओनली वॉज ही अ इलस्ट्रेटर, उन्होंने ना ही सिर्फ लाइन ड्राइंग्स बहुत अच्छी करी पर एक नेशनल आइडेंटिटी इंडिया की बंगाल से आगे जाकर जो कांग्रेस पार्टी का एक प्रोपेगेंडा जिसको हम उस टाइम पे प्रोपेगेंडा आर्ट कहते हैं वो भी किया. और उस तरीके से उन्होंने बंगाल को ही आगे नहीं किया, बंगाल आर्टिस्ट को भी आगे किया, क्योंकि जो उनका काम का क्षेत्र था वो बंगाल से जाके नेशनल बन गया. जब भारतीय संविधान लिखा जा रहा था तो उसका जो ओरिजिनल संविधान में पेंटिंग वगैरह बनाने का, चित्रकला करने का दायित्व था वो नंदलाल बोस को सौंपा गया था. उन्होंने ही सारी इलस्ट्रेशंस और सारी चित्रकारी की है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आज भी हम जो पार्लियामेंट में रखी हुई है. उसमें सारा ओरिजिनल काम मिनिएचर स्टाइल में, एक स्वदेशी स्टाइल में, उनकी अपनी टिपिकल स्टाइल में उन्होंने नंदलाल बोस ने ही किया है. सिस्टर निवेदिता से भी उनके बेहद अच्छे ताल्लुकात थे और उन्होंने उन्हें इस बात के लिए आमादा किया कि वो अजंता और एलोरा की तस्वीरें भी बनाएं. The Nandalal Bose, after copying the Ajanta, he had a great influence of Ajanta, the Bak Cave and other this type of artwork, which was our own, you can say is our own artwork, our own art, not the British's art. उन्होंने ग्वालियर की गुफा की भी तस्वीरें कागजों पर उतारी. इस तरह से उन्होंने अपनी मुसव्विरी में कदीम मुसव्विरी की रूह को पाने और समझने की अनोखी कोशिश की. Nandalal Bose, he has given attention the South Indian sculpture, and when it comes to discuss about the national movement, the national style, उन्हें मुसव्विरी के मैदान में खिदमत के लिए कई एजाज़ात से भी नवाजा गया, जिसमें हुकूमत हिंद की तरफ से दिया गया पद्म भूषण अहम है. इस अजीम फनकार की 83 साल की उम्र में 16 अप्रैल 1966 में मौत हो गई और हमेशा के लिए इस दुनिया को खैर बात कह दिया. आज भी वो हमारे दरमियां अपने अजीम फनपारों की वजह से जिंदा और ताबिंदा हैं.